Hello students. So today we are going to study heterotrophic mode of nutrition. Is it clear? So the word hetero means other and trops means nutrition. Is it clear? Hence it is a type of nutrition in which organism cannot prepare their own organic food from inorganic substances and hence depends on autotrophs for their food supply directly or indirectly. Is it clear? So heterotrophic mode of nutrition means, students, all the animals, they comes under heterotrophic mode of nutrition. The reason is that they cannot prepare organic food from inorganic substances and hence they eat autotrophs फॉर देयर फूड सप्लाई. तो बच्चों आगे जाएंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स कम्स अंडर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इज इट क्लियर? एग्जाम्पल यू कैन सी all the animals have a heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition. This man, dog, cat, deer, tiger, bear, lion, cow, etc. all are follow heterotrophic mode of nutrition and they are called heterotrophs. The non-green plants like yeast are also heterotrophs. ठीक है बच्चों? Yeast है non-green plants. Fine? So they are also heterotrophs because they cannot prepare their organic food. Now, types of heterotrophic nutrition. Now heterotrophic nutrition are of three types बच्चों. एक है saprophytes, okay. Next is parasite mode of nutrition. Third is holozoic mode of nutrition. So बच्चों, saprophytic mode of nutrition. What is saprophytic mode of nutrition? So in this mode of nutrition, organism obtain their nutrient from the dead and decayed organic matter. Example, fungi, bacteria. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उसको बोलते हैं saprophytes because they get their food from dead and decaying organic matter. They feed on dead and decaying organic matter. For example बच्चों, एक फिगर से आपको समझाता हूँ. देखिए, ये है डेड बॉडी. ठीक है बच्चों, दिस इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इस पे सैप्रोफाइट एक्ट करते हैं. तो ये जो छोटे छोटे डॉट में बनाया हो बच्चों, ये है. तो ये जो छोटे छोटे डॉट है बच्चों, आप इसको बोलेंगे सैप्रोफाइट्स. ठीक है. सो दे एक्ट ऑन दिस डेड बॉडी. दे ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड बॉडी. ओके. एंड आफ्टर दैट दे कन्वर्ट दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. एंड दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर अगेन रीअब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. ठीक है बच्चों, तो पूरा लॉजिक क्लियर हो गया. तो सैप्रोफाइट्स को इसीलिए हम लोग और एक नाम बोलते हैं बच्चों, डीकम्पोजर्स. सो व्हाट डू वी कॉल अनदर नेम? दैट इज डीकम्पोजर्स. ओके, डीकम्पोजर्स. सो दे एक्चुअली कन्वर्ट, वी कैन से, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ओके. And they replenish the soil with its lost nutrient. Fine. तो सॉइल ने जो न्यूट्रिएंट खोया है वो सैप्रोफाइट के वजह से उनको वापस से मिल जाता है और वो न्यूट्रिएंट वापस से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सैप्रोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर बिकॉज दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है बच्चों. Saprophytes are also called decomposers and basically they help in recycling. आप एक वर्ड बोल सकते हैं बच्चों, they recycle the nutrient. ठीक है. Now next is, so saprophytes बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
So in this mode of nutrition, organisms depends on other organisms for their nutritional requirement. So one organism doesn't have the capacity to get the nutrient. So it gets the nutrient from other organisms. ठीक है बच्चों. Parasite lives in intimate association with the host. For example, देखिए मैं आपको और एक फिगर बना के दिखा देता हूँ. देखिए बच्चों, ये जो एनिमल है इसको देखिए, हंसिएगा मत, ये है होस्ट. तो इसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है इसको कहते हैं पैरासाइट. सो दिस यू कैन कॉल इट एज गेस्ट. ठीक है बच्चों. सो दिस पैरासाइट obtain its nutrient from this host. ठीक है. तो होस्ट जो भी खाता है बच्चों, ये सारा some of the nutrients are absorbed by the parasites. So we can say that parasite lives in intimate association with the host. Intimate association मतलब ये होस्ट के बहुत करीब रहता है. ओके जैसे देखिए बच्चों, एकदम करीब है, एकदम सटा हुआ है, एकदम चिपका हुआ है. तो we can say that the parasite lives in intimate association with the host. लेकिन रिटर्न में पैरासाइट होस्ट को कुछ वापस नहीं देता है, बस ये लेता रहता है बच्चों. पैरासाइट का काम है न्यूट्रिएंट लेना. किससे? होस्ट से. और वापस होस्ट को कुछ भी नहीं देना. तो ये रिलेशन बच्चों बताइए अच्छा है कि बुरा है? डेफिनेटली रिलेशन बुरा है. पैरासाइट के लिए बड़ा अच्छा है लेकिन होस्ट के लिए बुरा है, बिकॉज होस्ट इज लूजिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड इन रिटर्न इट डजंट गेट्स एनीथिंग फ्रॉम द पैरासाइट्स. सो पैरासाइट्स आर नॉट गुड बेसिकली बच्चों, because they gets the nutrient from the host and in turn returns no benefit. यानी जब उनकी बारी आती है तो वो कोई भी बेनिफिट को रिटर्न नहीं करते हैं. सो दिस इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों. सो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. Parasite lives in intimate association with the host from which it gets nutrient and in turn return no benefits to the host. And in turn जब अपनी बारी आई वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. ठीक है बच्चों. एग्जाम्पल, राउंड वॉर्म, लिवर फ्लूक, लीच, टिक्स, मॉस्किटोस, खसखटा एक्सेट्रा, दे आर पैरासिटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है बच्चों. ये जो राउंड वॉर्म है, लिवर फ्लूक है, they live inside the body of the organism and sucks the blood, takes the nutrient and in return gives no benefit. Is it clear? अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So in this mode of nutrition, organism obtains food through definite process like इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एसिमिलेट करते हैं एंड फाइनली इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट. सो बच्चों जो ऑर्गेनिज्म खाने को खाता है विद द हेल्प ऑफ माउथ, ओके, देन द फूड इज डाइजेस्टेड, देन द फूड इज एब्जॉर्ब्ड, then the food is used by the body and finally the undigested food is eliminated out. So this entire process comes under holozoic mode of nutrition. Okay, for example, all the animals, if you see around you, cow, goat, dog, cat, ourselves also, we eat food. After that the food goes into the stomach and intestine and the food is digested. The digested food is absorbed, fine, and the digested food is utilized by our body, and finally the undigested food is thrown out of the body. So those organisms which follow this type of route comes under holozoic mode of nutrition. Is it clear बच्चों? तो example all animals. तो बच्चों एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. सैप्रोफाइट्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर दोज which obtain nutrient from other organisms, okay, and they live in intimate association with the host and in return gives no benefits.
तो पैरासाइट बच्चों एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन पैरासाइट नेवर लिव अलोन, दे ऑलवेज लिव अलोंग विद होस्ट। एग्जाम्पल दिया है बच्चों। नेक्स्ट इज holozoic mode of nutrition. In this mode of nutrition, organism properly eat the food, digest the food and rest of the process takes on. ठीक है बच्चों, आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग। वल्चर, वल्चर किस में आता है बच्चों? holozoic, because vulture even though they eat the dead bodies, they eat the decaying bodies, but they eat it, they digest it, they absorb the digested food, then they remove the वेस्ट मटेरियल, सो दे कम्स अंडर holozoic। इसको सैप्रोफाइट मत भूलिएगा बच्चों, सैप्रोफाइट्स केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। नेक्स्ट इज मॉस्किटो, यू नो दैट दे सक आवर ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड दे गेट द न्यूट्रिएंट, करेक्ट। लीच, यू नो, ठिंगी जिसको बोलते हैं, जो हमारा खून चूसता है बच्चों, वो भी क्या है? पैरासाइट। स्नेक holozoic, because snake eat the food, digest the food and rest of the process takes place. Holozoic. Goat is also holozoic and human being is again holozoic. तो बच्चों, तो इस तरह से हमने साइंस अभी शुरू किया है। तो मैं जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो सारे टॉपिक को बढ़िया से लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। तो ये मुझे आज रात तक या तो कल आफ्टरनून से पहले मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। holozoic mode of nutrition एग्जाम्पल, there are 3 types of holozoic mode of nutrition, saprophyte, parasite and holozoic, और इन तीनों का डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है बच्चों। तो इतना पढ़ना है आपको, देख लीजिए। तो ऑल टुगेदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले, सो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है बच्चों। सैप्रोफाइट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो वो भी किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। holozoic, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए बच्चों इन तीनों को मिला के कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स अदर्स। तो बच्चों मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बिकॉज एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? मैं एक वीडियो में एक चीज को 10 बार बोलूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए, आपको याद भी हो जाए, ठीक है बच्चों। सो बढ़िया से लिख दीजिए, मुझे भेज दीजिए। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।